Hello students. So in today we are going to see another group in the kingdom Plantae. Yes. So in the kingdom Plantae we have classified the kingdom Plantae as the cryptogams and phanerogams. Cryptogams are those that are the producing plants which do not produce seeds and flowers. Yes. So they are non-vascular plants and vascular plants. The non-vascular plants is further divided as Thallophyta and Bryophyta. Yes, yesterday we have seen the Thallophyta, that is the algae. हमने इनके बारे में पूरा पढ़ा. Yes, it is the primitive form of the plant where we see that all the algae they are found in water. Yes, they are thalloid. Means उसमें thalloid अगर बोलेंगे तो that is it is not having true roots, true leaves or true stems उसमें नहीं होते हैं, इसीलिए that we called as a thalloid. Yes. Then there are different types of algae देखे हमने. Yes. Then after seeing this Thallophyta, today we are going to see the Bryophyta. It is also a non-vascular plant, means it also not having the conduction system or the conducting tissues is not present, that is xylem and phloem is not present in the Bryophyta. Yes. So today we are going to see this Bryophyta. It is little bit more modified form of the plants in which they have some more characteristics rather than the Thallophyta or the algae. Yes, this is the part where it is non-vascular plant. After that we see the Pteridophyta, that is the vascular plant. In the cryptogram the Pteridophyta, अगर ऐसा ये आप बोल सकते हैं, it is that of ये एक ऐसा एरा था जहाँ पे जो प्लांट्स ने धीरे धीरे खुद को मॉडिफाई करना स्टार्ट किया, देन दे शुड हैव अ वस्कुलर उनमें सिस्टम आने लगा. यस, एंड आफ्टर दैट वी विल सी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. यस, सो आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज दिस Bryophyta. Yes. So what is the different characteristics of Bryophyta and how they are classified? So see in this video. Okay. यस, सो इन द ब्रायोफाइटा, अगर ब्रायोफाइटा से पहले हम अगर थैलोफाइटा और अलगी की अगर बात करते हैं तो वी हैव सीन कि दे आर फाउंड मोस्टली इन द वाटर. यस, वो सारे कहाँ मिले हमको? वाटर में मिले. या तो वो वाटर कैसा था? सलाइन वाटर था और द मराइन वाटर था, और इट मे बी अ फ्रेश वाटर. यस, बट ऑल द प्लांट्स आर अवेलेबल, ऑल द अलगीज आर अवेलेबल इन द वाटर. यस, बट रेदर ऑन, अब हर चीज़ जो है वो हमेशा वाटर में ही रहना पसंद नहीं करती. यस, सो धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन हुए. लेटर ऑन इट वाज कि प्लांट्स को भी अच्छा नहीं लगा वाटर में रहने के कारण उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी जो है लैंड में रहना धीरे धीरे स्टार्ट करूँ. यस, सो द this field or this group of the plant, that is the Bryophyta, they have choose to live in both water and land. Yes, because of this nature they are called as the amphibian or the amphibious plant. They are called as the amphibious plant, means like amphibians they also live in water and land. Yes, but there are some उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स थे दैट दे शुड फुलफिल इन वाटर एंड द रिक्वायरमेंट दे शुड फुलफिल इन लैंड. यस, so mostly they are live in moist and damp places. Yes, they live in moist and damp places क्योंकि उनको ज़रूरत है वाटर की, तो ज़रूरत है बट नॉट टोटली वाटर, बट ऐसा तो उनको जगह चाहिए जहाँ पे उन्हें जब चाहे वो वाटर मिल सके. सो दे यूज टू ग्रो इन द मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस. यस, शेडी प्लेसेस जहाँ पे उनको ज़्यादा धूप ना हो ताकि उनको वाटर इजीली अवेलेबल हो सके. यस, सो दे मोस्टली लिव इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस. दे आल्सो कॉल्ड एज द एम्फीबियस प्लांट बिकॉज दे रिक्वायर्ड. अब एम्फीबियंस है मतलब उनको दे मोस्टली लिव इन वाटर. यस, एंड बिकॉज ऑफ द लिव इन वाटर दे प्रोड्यूस, अगर उनका रिप्रोडक्शन होना है तो हाउ दे रिप्रोड्यूस? सो इट इज़ रिप्रोड्यूस बाय द गमिट फॉर्मेशन where the gamete is transferred from the मेल, जो स्पर्म है इट इज ट्रांसफर टू द फीमेल. यस, ये ट्रांसफर होना चाहिए, तो वो जो ट्रांसफर होना चाहिए इट शुड रिक्वायर अ मीडियम. अब ये जो मीडियम है ये मीडियम कौन सा रहेगा? सो हियर द वाटर इज द मीडियम वेयर द स्पर्म और द वन गमेट इज ट्रांसफर फ्रॉम द अनदर गमेट वेयर द मेल गमेट इज ट्रांसफर टू द फीमेल गमेट. सो हियर द फॉर दिस इट दे रिक्वायर्ड water for the fertilization.
yes, so they required water for the fertilization and other जो उनकी लाइफ जो सर्वाइवल कर सकते, they can easily survive on the land. So because of this nature they called as the amphibious plant, because they required water for the fertilization and required land for the other survival processes के लिए. Yes, so this is one of the characteristics of the bryophyta. Next is the, अब हम देखते हैं ब्रायोफाइटा इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द थैलोफाइटा, और अलगी से ये मॉडिफाइड है. सो हियर पहले अगर हमने देखा कि देर इज़ अ फॉर्मेशन, अगर हम अलगी की बात करते हैं तो देर इज़ ऑलवेज अ रिप्रोडक्शन अगर होता था तो उसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से रिप्रोड्यूस हो सकता था. यस, सो हियर देर इज अ अल्ट्रेशन. आप देखेंगे कि ब्रायोफाइटा में देर इज अ अल्ट्रेशन ऑफ द लाइफ साइकिल आपको देखने मिलेगा. मीन्स अल्ट्रेशन इन लाइफ साइकिल मीन्स ऐसा कि यहाँ पे आपको गमिट फॉर्मेशन भी मिलेगा और आपको स्पोर फॉर्मेशन देखने मिलेगा. यहाँ पे कोई एक ही चीज़ नहीं हो रही है, यहाँ पे एट अ टाइम दोनों चीज़ें हो रही है, बट एट अ सर्टन टाइम. जैसे कि गमिट गमिटोफाइटिक स्टेज एंड स्पायरोफाइटिक स्टेज, दोनों जो स्टेज है यहाँ पे क्या हो रहा है, गमिट का फॉर्मेशन हो रहा है. गमिट फॉर्मेशन जो फीमेल और मेल गमिट फॉर्म होते हैं. यस, स्पोर फॉर्मेशन जो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी आपको, और उसको बोल सकते हैं और जर्मिनेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के लिए दे रिक्वायर. सो द स्पोर्स आर रिक्वायर्ड. यस, और टू मेंटेन, या आप बोल सकते हो कि स्पोर्स की ज़रूरत कब होती है, कि जब हमारे जो फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती है, एट अनफेवरेबल कंडीशन दे रिमेन इन द स्पोर फॉर्म एंड आफ्टर दैट इट कम इन टू द वो फिर से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं. यस, सो दीज आर द सम स्टेजेस. फर्स्ट इज द गमिटोफाइटिक स्टेज एंड द स्पोरोफाइटिक स्टेज. ये दोनों स्टेज ये ब्रायोफाइटा में आपको देखने मिलेगी. गमिटोफाइट्स में देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गमिट, स्पोरोफाइट्स में देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स. वेर इज द गमिटोफाइट्स द स्टेज इज डोमिनेंट. दिस स्टेज इज डोमिनेंस. अब ये जो ब्रायोफाइटा था, जैसे हमने देखा अलगी दे आर लिव इन द वाटर, बट इन द ब्रायोफाइटा अगर आप देखेंगे देर इज अ, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, थैलस देखने के लिए मिल रहा है. यस, जो थैलस है वो थैलस क्या, थैलस हमने क्या बोला, इट इज़ लाइक कि वो एक तरह से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्लांट बॉडी जिसका पर्टिकुलर कुछ हम बता नहीं सकते कि उसकी लीफ कहाँ पे है, स्टेम कहाँ पे है, रूट्स कहाँ पे है. यस, सो इट इज़ द थायलॉइड फॉर्म में वो रहता था. बट धीरे धीरे क्या हुआ, देर इज़ अ फॉर्मेशन, उनमें क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ. लेटर ऑन वी सी कि उनमें गमिट फॉर्मेशन हुआ, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिखा, एक या हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर मीन्स जैसे जैसे सींग निकलता है उसी तरह से उनमें स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ. यस, एंड आफ्टर दैट देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर. यस, देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर. उनमें क्या हुआ, स्पोर फॉर्मेशन होने लगा. यस, स्पोर फॉर्मेशन होने लगा. दिस लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे धीरे धीरे मॉडिफाइड होने लगा. यस, तो पहला कैसा था, सिर्फ वो थैलस था, उसके बाद देर इज़ अ गमिट फॉर्मेशन एंड देर इज़ ऑल्सो अ स्पोर फॉर्मेशन. सो ये जो स्टेज है दैट इज़ द स्पोर फॉर्मेशन एंड देर इज़ अ गमिट फॉर्मेशन. ये जो स्टेज है, दो स्टेज हो गए, यहाँ पे गमिट फॉर्म हो रहा है एंड देर इज़ अ स्पोर फॉर्मेशन. वी कैन सी अ डायग्राम इन योर बुक. यस, सो सी इन योर बुक, यहाँ पे आपको किस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है. देर इज़ अ गमिटोफाइटिक स्टेज या आपको दिख रही है एंड द स्पोरोफाइट्स दिख रहे हैं. यस, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, गमिट्स भी फॉर्म हो रहे हैं एंड द स्पोर्स भी फॉर्म हो रहे हैं. बट यहाँ पे क्या है, स्पोर्स जो है वो बाद में आया, गमिट पहले आया है. सो द स्पोर्स आर डिपेंडेंट ऑन द गमिट. यस, फॉर देयर वाटर मिनरल्स, जो भी न्यूट्रिशन है, दे आर और टोटली डिपेंडेंट ऑन द गमिटोफाइट. यस, बट लेटर ऑन जब हम ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा से और आगे जब जाएंगे, व्हाट वी सी कि हमें क्या देखने मिलेगा कि धीरे धीरे जो गमिटोफिटिक स्टेज है ये क्या होती जाएगी, दिस विल एक्सटेंड एंड द स्पोरोफिटिक स्टेज ही रह जाएगी. यस, और इट में कि ये डोमिनेंट होगी और ये रेसेसिव हो जाएगी. मीन्स स्पोर्स अपने आप खुद रह सकते हैं, वो अपने आप खुद अपना देखभाल कर सकते हैं. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द गमिटोफाइट. बट नाउ in the
ब्रायोफाइटा, व्हाट इज हैपनिंग हियर, द गमीटोफिटिक स्टेज एंड स्पोरोफिटिक स्टेज दोनों दिख रही हैं, बट द स्पोरोफाइट्स दे आर डिपेंडिंग ऑन दिस गमीटोफाइट्स. यस, हियर द गमीट इज फॉर्म, हियर द स्पोर्स इज फॉर्म. यस, सो दिस इज द अल्ट्रेशन. मतलब अब क्या होगा, अल्ट्रेशन ऑफ लाइफ साइकिल हो रहा है. मतलब क्या हो रहा है, कुछ जो स्टेज है कुछ टाइम वो गमीटोफाइट की तरह बिहेव करेंगे, अब गमीट्स बनाएंगे, एंड आफ्टर सम टाइम्स दे फॉर्म द स्पोर्स. यस, सो यहाँ पे क्या होगा, देर इज अ अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन. कभी वो गमिट्स बनाएंगे, कभी वो स्पोर्स बनाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज द अल्ट्रेशन ऑफ लाइफ साइकिल. यस, एंड नाउ इन द ब्रायोफाइटा दिस गमीटोफिटिक स्टेज जो है इट इज डोमिनेंट. ये खुद को डोमिनेंट कर रहा है क्योंकि ये अभी अभी आया है. यस, लेटर ऑन जब आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो स्पोरोफिटिक स्टेज है ये डोमिनेंट हो जाएगा और ये रेसेसिव हो जाएगा. सो दिस इज द अल्ट्रेशन ऑफ लाइफ साइकिल इन द ब्रायोफाइटा. यस, अब ब्रायोफाइटा में क्या दिख रहा है, वी फाउंड समथिंग न्यू. जैसे कि हमने देखा था कि अलगी में देर इज नो रूट और नो शूट्स और कुछ भी हमको स्टेम्स जैसा कुछ नहीं दिखाई देता था, जस्ट एक लीफ की तरह एक कुछ ऐसे सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाई देता था. यस, बट नाउ इन द ब्रायोफाइटा यू सी अ रूट लाइक स्ट्रक्चर और शूट लाइक स्ट्रक्चर. ऐसे लाइक मतलब उनकी तरह, दैट इज नॉट द रूट्स बट उनकी तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स हमें ऐसे दिखाई देंगे यहाँ पे, दैट इज इन द ब्रायोफाइटा. So the root-like structure that is appear in the bryophyta, it is called as the rhizoid. It is called as the rhizoid, which is act as a root. वो उसकी तरह दिखने वाले हैं, वो roots नहीं है. Yes, उसकी तरह है, like. Yes. So here the जैसे roots का काम क्या होता है, it hold the plant to the soil. वो hold करके रखता है plant को soil में. उसी तरह से rhizoid is also help to होल्ड दैट थैलस इन द सबस्ट्रेटम. मतलब उसको जो जो आपकी बेस है, बेस में उसको होल्ड करने के लिए दैट द राइजॉइड इज हेल्पिंग. यस, इट ऑल्सो हेल्प इन टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. यस, सो लाइक जैसे रूट्स हेल्प करता है टू मेंटेन द प्लांट इन द सॉइल एंड टू एब्जॉर्ब रूट्स टू एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द soil. So likewise here the rhizoid is helping the bryophyta to absorbing the minerals and water from the root from the soil, and is to maintain to use for the fixation of thallus in the substratum. Yes, substratum में या soil में उसको maintain, उसको पकड़ के रखने के लिए that is the rhizoid का क्या है use होता है. Yes, now अगर हम बात करते हैं कि जो उस देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ के हमको यहाँ पे देखने मिलते हैं, स्पीशीज़ देखने मिलते हैं, जेनेरा देखने मिलते हैं. सो देर आर 960 types of genera that is found of the bryophyta, and 25,000 of the species we can see in the group of this bryophyta. Yes, yes. Then next the bryophyta is divided into two groups. अब इनके जो groups है, first is the primitive group, that is the primitive group, and second जो रहेगा थोड़ा सा modified group रहेगा. Yes, so the primitive group आप उसको बोल सकते हो that is called as the liverwort, and second जो modified रहेगा that is called as the mosses. Yes, so these are the modified. Moss is the modified form of the bryophyta and the liverwort is the primitive type of the, आप देखेंगे that is the liverhawk. Yes, it is a primitive type of the bryophyta. Yes, so what are the characteristics, one by one we are going to see. Yes, so let us, हम बुक में जाते हैं और बुक से वन बाय वन वो स्टडी करते हैं. Yes, yes, bryophyta. Bryophytes or the bryon means moss and phyton means plants. Bryophytes are mostly terrestrial plants. They found in the moist, shady places. Yes, but they need water for fertilization and completion of their life cycle. Yes, hence they are called amphibious plants because they live in both water and land. They include approximately 960 genera and about 25,000 species.
Life cycle of bryophyte shows sporophytic and gametophytic stage, where the vegetative plant body, that is the thalloid, is leafy, which represent gametophytic generation. Spore producing capsule represent the sporophytic generation. मतलब जो हमने यहाँ पे डायग्राम देखा था उसमें हमने क्या देखा कि दिस इज द वेजिटेटिव पार्ट, दिस इज द वेजिटेटिव प्लांट जो गमेटोफिटिक स्टेज शो कर रहा है हमें, एंड दिस इज द स्पोरोफिटिक प्लांट जो पार्ट है जो हमको क्या कर रहा है, स्पोर्स वहाँ पे स्पोर्स बना रहा है. यस, सो द वेजिटेटिव प्लांट body is thalloid or leafy, which represent the gametophytic generation, and spore producing capsules, these are the capsules. Yes, these are the capsules which these producing capsule represent the sporophytic generation. Yes, and this is the two generation which is shown by this bryophyta. Yes, then bryophytes have root-like structures called the rhizoid, and these rhizoids are unicellular in the leverhog. This is the primitive type of bryophyte, while multicellular in mosses. Yes, rhizoid absorb water and minerals and also help in fixation of thallus on the substratum. Yes, like यहाँ पे आपको जो दिख रहा है that is the rhizoid. This is the root-like structure which help in absorbing nutrients from the soil, and it also help in holding the plant into the roots. Yes, so these are the two functions of these rhizoids. Yes, then the bryophytes are divided into two groups, that is the liverwort and the mosses. Yes, the first is the liverwort, that is the Hepatiaceae. These are the lower members of the Bryophyta or the primitive group. Yes, these are the primitive group of the bryophytes. Gametophytes possess flat plants body called the thallus, and the thallus is green dorsiventral. अब हमने जो यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है that is the रेक्शिया. यस, रेक्शिया. अगर यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं, फ्रॉम दिस डायग्राम व्हाट यू सी कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द स्ट्रक्चर. एक आपको सिर्फ येलो सॉरी ग्रीन कलर का आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक लीफ की तरह दिख रहा है, जिसमें हम एक क्या बोल रहे हैं कि इट इज कि नॉट यहाँ पे हमको लीव्स दिखाई अच्छे से रूट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ क्लियरली डिफाइन नहीं हो रहा है. यस, दैट इज कॉल्ड एज द थैलस. यस, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो इट इज द gametophytic possess flat plant bodies called as the thallus, and thallus are green dorsiventral. dorsiventral मतलब जो लीफ का एक साइड और दूसरा साइड दोनों कैसा है, एक जैसा रहेगा. यस, सो हियर दे आर dorsiventral. प्रोस्टेट मीन्स एक ऐसे उल्टा किया हुआ है, प्रोस्टेट. यस, विथ यूनिसेलुलर rhizoid. Yes, that is unicellular rhizoid. Example is the Rexia and Markensia. Yes, these are the example of this liverwort. Yes, so here हम क्या देख रहा है कि हमको यहाँ पे एक थैलस की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इसमें जो बोला है राइजॉइड है, इट इज़ यूनिसेलुलर, बट यहाँ पे हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है. यस, सो इट इज़ कि ये सिंपल आपको एक लीफ है जो फैला हुआ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज द इनिशियल और द प्रिमिटिव टाइप ऑफ द ब्रायोफाइट, वेयर द गमेटोफिटिक स्टेज इज, जिसमें सिर्फ गमेट फॉर्म होते थे. यस, गमेट फॉर्म होते थे, गमेट मेल एंड फीमेल गमेट बनेंगे एंड दे रिप्रोड्यूस, फिर वो एक दूसरे से मेट करेंगे और उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा. यस, सो इट इज इन दिस टाइप. यस, इट इज इन द लोअर फेज. नाउ नेक्स्ट इज द हॉर्नवोर्ट. जो आपको नेक्स्ट जो मेंबर है इस फील्ड का, दैट इज द हॉर्नवोर्ट. दैट इज जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे सेकेंड, उसका एग्जांपल इज एंथोसेरोस. यस, एंथोसोरस. आपको ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे जो दिख रहा है एक, उसके ऊपर आप देखो, आपको ये सिंग की तरह, हॉर्न की तरह दिखाई दे रहे हैं. यस, जिस तरह से सिंग होता है ये निकलते हुए दिखाई दे रहा है. यस, so it is because of that they are called as hornwort. This member possess the flattened thallus. The thallus produces horny structure, yes, which is called the sporophytes. This is the sporophytes. Horny structure आपको दिखाई दे रहे हैं. So अब हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है
ये हॉर्नी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, सो फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे प्लांट्स में मॉडिफिकेशन हुआ होगा, कि कैसे पहले अलगी जो है वो रॉक्स के ऊपर या जो प्रिमिटिव आप बोल सकते हैं वाटर में वो इजीली रह पाते थे, फिर धीरे धीरे दे विल ग्रो। उसके बाद उन्होंने हॉर्न स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ उनमें। यस, this horn structure, it is responsible for the spore formation. Yes, so here the horny structure which is called as the sporophytes, hence the name is called as the hornwort. An example is the Anthoceros. Yes, this is the example. Yes, then from the next अगर हम देख रहे हैं कि next group, that is the modified group, that is the mosses. Yes, here the mosses, yes, so the mosses, they are the advanced member of the bryophyta which possess erect plant body. yes, यहाँ पे हमको एक इरेक्ट मतलब एक पर्टिकुलर एक जो प्लांट रहना चाहिए उस तरह से हमें एक पर्टिकुलर प्लांट दिखता है। यस, हियर द गमीटोफिटिक फेज ऑफ लाइफ साइकिल इंक्लूड टू स्टेजेस। अब यहाँ पे जो गमीटोफिटिक स्टेज है उसमें हम देखेंगे कि दे हैव टू स्टेजेस। फर्स्ट इज द protonema stage and the leafy stage. The protonema stage is the prostate, green, branch and filamentous, or it is also called as the juvenile gametophyte. yes, juvenile मतलब एकदम जो छोटा है, जो अभी अभी बॉर्न हुआ है, इस तरह से जो जुनाइल होता है, नया है। सो दैट इज उस वो कैसा दिख रहा है आपको, दैट इज उनमें वो ग्रीन है, ब्रांच है, फिलामेंटस है। इट बियर्स मैनी बर्ड्स, leafy stage are produced from each bird. Yes, thus protonema help in the vegetative propagation. Yes, so it best example is the funaria. Yes, that is the funaria, यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है। सो यहाँ पे आपको जो वेजिटेटिव स्टेज है, जो आपको ये ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, दैट इज द वेजिटेटिव स्टेज, और सॉरी दैट इज द gametophytic stage. Yes, gametophytic stage में you see the protonema and the leafy stage. मतलब पहले क्या होगा, ग्रीन कलर या ब्रांच फिलामेंटस उसमें ग्रो होंगे, उसके बाद देर इज अ लीफी स्टेज प्रोड्यूस होगा फ्रॉम दिस बर्ड। पहले बर्ड होगा, उसके बाद उसमें से लीफ की तरह स्ट्रक्चर ग्रो होंगे। यस, वाइट इज इन हेजी क्यों हो रहा है? Yes, so here the protonema is the prostate, green, branch and filamentous. It is also called the juvenile gametophytes. It bears many birds and this help in the leafy stage. यहाँ से एक एक bird से एक एक leaf निकलना start होगा। Thus protonema help in the vegetative propagation. Yes, धीरे धीरे क्या हो रहा है उसमें ग्रोथ हो रहा है। Yes, the leafy stage has erect cylinder and stem-like, that is colloid, main axis bearing spiral leaf-like structure, that is the phylloid. Yes, ये उसमें से निकलना स्टार्ट होंगे जो ग्रीन कलर का है। Yes, it is fixed in the soil by the multicellular branch rhizoid. This stage bear sex organ. Vegetative reproduction takes place by fragmentation and budding in the secondary protonema. सो दीज आर द टू स्टेजेस जो हम देख रहे हैं कि क्या दिख रहा है हमें फ्रॉम दिस डायग्राम। जो आप देखोगे यहाँ पे मोसेस में यू फाइंड कि इट इज़ द एडवांस मेंबर। यहाँ पे हमें दो स्टेजेस देखने मिल रहे हैं इन द फेज ऑफ गमीटोफिटिक स्टेज, दैट इज द प्रोटोनेमा एंड द लीफी स्टेज। यस, द प्रोटोनेमा जो बोला गया है, इट इज द एक जो ब्रांच ग्रीन, और आप बोल सकते हो फिलामेंटस, एक तरह से यहाँ पे एक लेयर फॉर्म होगी पहले, देन फ्रॉम दैट देर इज अ बर्ड फॉर्म होगा। बर्ड फॉर्म होने के बाद देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पाइरल, उसमें से क्या निकलेंगे, लीफी स्टेज या लीफ की तरह उसमें से लीफी स्टेज लीफ निकलेंगी। यस, दैट इज द स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसमें से निकलेगा, एंड दिस इज फिक्स्ड इन द सॉइल बाय अ मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड, और उसके बाद हमें इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यस, सो दैट इज द gametophytic phase. Yes, and later on there is a formation of this spirophytic. Yes,
गमीटोफिटिक स्टेज एंड इसके बाद हमको यहाँ पे स्पोरोफिटिक स्टेज दिखाई देंगे. यस, सो दिस इज हाउ द gametophytic stage is happening in the mosses. Yes, then what are the economic importance of this mosses? सो एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मोसेस. सो दे आर very much they mosses provide food for herbivorous mammals, birds, etc. अब आप कई बार जब जंगल या कोई ऐसे डिस्कवरी में अगर आप कभी देखो तो आपको ग्रीन कलर का जो पूरा घास जो दिखता है, घास नहीं बोलेंगे, दैट इज कि वो रॉक के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन पूरा जमा हुआ रहता है, जो हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये काई की तरह है, दैट यू कॉल एज द मॉस. यस, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉस, जो एक घास, हल्की हल्की घास दिखाई देती है. यस, दैट इज द मॉस. यस, एंड इट इज प्रोवाइड फूड, और वो है जो एक फूड की तरह जो मैमल्स है, बर्ड्स है, वो यूज कर सकते हैं. यस, द स्पीशीज ऑफ स्पैगनम मॉस प्रोवाइड पीट यूज एज फ्यूल. और ये जो है स्पैगनम जो एक तरह से मॉस है, जो एक पीट मतलब जैसे लकड़ी जो हम बोलते हैं, जिस तरह से ये यूज़ होता है फ्यूल की तरह, वैसे ही ये भी एक फ्यूल की तरह यूज़ हो सकता है. यस, मॉसेस आर ऑल्सो यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज दे हैव द सिग्निफिकेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. यस, सो अगर कोई चीज़ का पैक करना है और जो लिविंग मटेरियल है उसको पैक करना है, सो इट कैन बी, वो मॉसेस का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो उसको मॉइस्चर उसका मेंटेन रहे, बिकॉज द मॉसेस हैव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनमें ज़्यादा होती है, जिसके कारण दे आर एबिलिटी टू, वो उसको इजीली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा ताकि वो मॉइस्चर कंडीशन को क्या कर सके, मेंटेन कर सके. यस, सो then just like lichens, mosses are the first living beings to grow on rocks. Yes, it is the first living beings that is growing on the rocks. So they decompose rocks to form soil and make them suitable for growth of higher plants. Yes, so the dense layer of mosses help in prevention of soil erosion. जो soil erosion होता है उससे help करेगा because it hold the soil, और it help in soil erection and does act as a soil binder. So this is the how they can be important in our nature. Yes, so indirectly they are helping us. Yes, so these are the economic importance of this bryophyta. Yes, so this is, we have completed the bryophyta. Later on we found कि जो प्लांट्स है उनमें और मॉडिफिकेशन हुए. देर इज अपीयरेंस ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यूज, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम की तरह जो कंडक्टिंग टिश्यूज है, दे आर अपीयरिंग इन द नेक्स्ट प्लांट, दैट इज द टेरिडोफाइटा. दे आर द फर्स्ट प्लांट, और द ऐसे प्लांट्स थे दैट इज दे हैव द कंडक्टिंग सिस्टम था उनमें. यस, so this is the pteridophyta which we are going to see in the next video. Yes, so see you in next class. Okay, bye bye, goodbye.